और श्रेयांश कैसे हो बेटे? गुड मॉर्निंग। रिकवर हो गए पूरी तरह से फ्रॉम कोरोना? ठीक ठीक। ओके ओके। मॉर्निंग। So in the previous lecture, I discussed about the line discipline protocol. First one is inquiry and acknowledgement process. Second one is poll and select method. I also introduced about the poll and select method. I am going to discuss in detail. Timely join करिए भैया आप लोग. So the poll and select method of line discipline work with topologies where one device designated as a primary station and other rest devices designated as secondary devices or secondary station. So in multi-point system, there must be a coordination between these several devices with the help of some protocols and set of rules. Next come to the working. What happened during poll and select method.
So whenever a multi-point link consists, suppose this is primary station and other are secondary station, so these uses a single transmission line. आफ्ताब टाइमली ज्वाइन करो बेटा. Single transmission line and all exchanges made with through the primary device, even when ultimate designation is a secondary device, but mainly the controlling or the main station is primary device. So whole sole control is kept to the primary device. ये देखिए अभी तक लोग ज्वाइन ही कर रहे हैं. So as I already told you, साक्षी प्रखर वाजपेयी डिले क्यों होता है? So primary is always a initiator of any session. Mean जब भी if secondary also even want to send any data to the primary, who works as a main administrator or initiator or server also. So all the station must request to the primary station before they doing any transaction or transmission of their data. So always primary station is initiator. जो भी सेशन का इनिशिएशन होगा वो हमेशा प्राइमरी स्टेशन के थ्रू ही परफॉर्म होता है. इफ द प्राइमरी wants to receive data, it asks the secondary if they have anything to do send. This function is known as polling. अनमोल कश्यप से कह दीजिए, अब इसके बाद अगले जब टॉपिक होगा तब डिस्कस करेंगे. If the primary wants to send the data, it tells the target secondary to get ready to receive. This function is known as selecting. So first of all, must aware about the poll and selection. I am going to repeat again. अंश टाइमली बेटा ज्वाइन करो. 8 minutes already passed. So whenever primary want to receive any data, it asks the secondary. सूरज पांडे भी आ रहे हैं. It asks the secondary to do and send your data. This function is known as polling. If the primary want to send their data, it first inform to the secondary stations and also send a request message to ready to receive their data. यानी प्राइमरी डेटा, प्राइमरी स्टेशन का डेटा रिसीव करने के लिए उनको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है, मैसेज जाता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज सेलेक्टिंग. सिलेक्शन और पोलिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पोलिंग जब सेकेंडरी स्टेशन मिल करके प्राइमरी स्टेशन को डेटा सेंड करते हैं, और जब सिलेक्शन का मतलब या सेलेक्टिंग का मतलब होता है कि जब प्राइमरी स्टेशन इतने सारे सेकेंडरी स्टेशन में से किसी एक को चूज करते हैं, एक या दो को चूज करते हैं, तो वो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है. ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेशन का वर्क क्या है और पोलिंग और सिलेक्शन किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट कम टू द एड्रेसेस. हाउ एड्रेस इज established. For point to point configuration, there is no need for addressing. First of all, it is understand to all of you, जब किसी point to point यानी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तक की बात होती है तो there is no need to. सूरज पांडे टाइमली ज्वाइन करो, अदरवाइज मैं एंट्री नहीं दूंगा. डिस्टर्ब हो रही है क्लास. यहाँ पे कोई जाम आम नहीं लगता है कि मटियारी पे और चिन्हट पे कहीं जाम आम लग गया. नहीं, वो देख लो अपने हिसाब से, पहले से 4 मिनट 5 मिनट पहले से कनेक्ट हुआ करो. So I am discussing about the addresses for point to point या peer to peer means device to device configuration or connection. There is no need for addressing.
मतलब any transmission or any transaction put onto the link by one device can be intended only for the other. For the primary device in multi-point topology या multi-point connection, it is able to identify and communicate with a specific secondary device. However, there must be an addressing convention whenever you are going to send your data from more than one secondary stations. Okay. Poll and select identify each frame as being either to or from a specific device on the link. Each secondary device has an address that differentiate it from the others. So पोल और सेलेक्ट का मतलब ही यही हो गया कि whenever you select any station or secondary station, then directly connect to that station with the help of any channel allocation method and directly send your data. Whenever any secondary station initiate or want to send their data to primary or server system, it send any request. Primary station establish the connection and receive the data from secondary devices, and after that connection is closed as previous discussed in inquiry and acknowledgement process, जिसमें हमने आपको पहले भी एक डायग्राम से बताया था. इस केस में अगर आप बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया एक प्राइमरी है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपके सेकेंडरी हो सकते हैं. दोबारा डायग्राम आपको बता रहा हूँ. विद द आल्सो कनेक्शन एंड वर्किंग, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, ए बी सी. प्राइमरी एक है आपका. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये सेलेक्ट हो जाता है, मतलब प्राइमरी ने किसी भी सेकेंडरी स्टेशन को सेलेक्ट कर लिया. सपोज कर रहे हैं सी को सेलेक्ट कर लिया, प्राइमरी ने सी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे. ठीक है. उसके बाद जैसे ही सेलेक्ट कर दिया तो इसने आपको तुरंत एक्नॉलेजमेंट एक दे दिया. आफ्टर सिलेक्शन एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम स्टेशन सी, दैट इज योर सेकेंडरी, टू द प्राइमरी स्टेशन. ओके. जब जैसे ही यहाँ पे सेकेंडरी आपको स्टेशन ने एक्नॉलेजमेंट सेंड किया एंड you receive that acknowledgement, immediately primary station initiate and send their data to the station C, and after successful receiving of data from station C, it send acknowledgement to the primary, and if the primary station doesn't have any another data to send secondary station, whatever C or B or A, directly connection is destroyed or connection is terminated with the help of sending a message that is your EOT, end of transaction or end of transaction. प्रोसेस आपका सेम होता है. ठीक है. यहाँ पे इंक्वायरी और एक्नॉलेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सीधे सेलेक्ट कर लिया जाता है प्राइमरी स्टेशन से, बिकॉज प्राइमरी स्टेशन हैव होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू सेलेक्ट एनी डेजिग्नेटेड सेकेंडरी डिवाइस. तो तुरंत पहले सेलेक्ट कर लिया. सेलेक्ट करने के बाद, सेलेक्ट का मतलब ऑलरेडी एक मैसेज चला गया कि हमने आपको सेलेक्ट कर लिया है और हमारे पास डेटा है, हम आपको सेंड करना चाह रहे हैं. रिसीवर या सेकेंडरी स्टेशन ने एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया अगेंस्ट द सिलेक्शन रिक्वेस्ट और द सिलेक्शन प्रोसीजर मेथड. व्हेनेवर प्राइमरी रिसीव्स एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम सेकेंडरी सी, इट डायरेक्टली सेंड दियर ओरिजिनल इंफॉर्मेशन और डेटा. As soon as the station C receive their data, which is sent from the station, primary station, it directly send their acknowledgement to the primary station. If primary station decide there is no enough data to send station C or any other
स्टेशन, तो डायरेक्टली क्या करेगा, उसको एंड ऑफ ट्रांसमिशन या एंड ऑफ ट्रांजेक्शन का एक मैसेज, या डायरेक्टली एंड ऑफ ट्रांसमिशन भी कर सकता है। दो तरह से केस होते हैं, या तो एंड ऑफ ट्रांसमिशन कर देगा, आल्सो डायरेक्टली सेंड अ मैसेज दैट इज योर टाइम अप। टाइम अप का मतलब अगर सफिशिएंट टाइम पर एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ तब भी वो टाइम अप कर देगा। फर्दर जब दोबारा कनेक्शन स्टेब्लिश होगा तो एक्नॉलेजमेंट हो सकता है डिले आप सेंड करें और उसको वो मिले, उस केस में एक्नॉलेजमेंट उसको अपने पास रख लेंगे। एक्नॉलेजमेंट में रिसीवर ऑलरेडी सेंड करता है कि पैकेट इज सक्सेसफुली रिसीव्ड और नॉट, और इट इज रिसीव्ड बाय द स्टेशन सी दैट इज ऑर्फन पैकेट और देयर इज लॉस इन डेटा। इस तरह का मैसेज भी डायरेक्टली आपके पास प्राइमरी के पास आ जाता है। ठीक है, तो दो ही केस होते हैं, या तो वो टाइम अप हो जाएगा या एंड ऑफ ट्रांसमिशन का मैसेज प्राइमरी स्टेशन डिस्प्ले कर देगा। इसमें किसी को कोई स्टेप ना समझ में आए, प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम हो, प्रीवियस प्रोसीजर, क्योंकि जो नेक्स्ट क्विज होगी वो डायरेक्टली सेकेंड यूनिट पे ही ज्यादातर बेस्ड होगी, डेटा लिंक लेयर पे। नेक्स्ट कम टू द another responsibility or duty of data link layer, that is flow control. ये समझ में आ गया, सबको क्लियर है डायग्राम? मोहम्मद आफ्ताब, मोहम्मद आफ्ताब, डायग्राम क्लियर है? प्रोसेस प्रोसेस समझ में आ गया? अंश रस्तोगी, डायग्राम क्लियर है? प्रोसेस समझ में आया? पोल और सेलेक्ट मेथड क्या होता है? अच्छा, आई विल सेंड यू डिटेल नोट एंड क्लियर डायग्राम, आपको जो भी है इसका वीडियो मैं आज अपलोड कर दूंगा, आप उस पर देख पाएंगे। आज थोड़ी प्रॉब्लम है। सो कम टू द अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, that is your flow control. This is the second aspect of data link control, या second responsibility of data link control. ठीक, flow control is a set of procedure that tells the sender how much data it can transmit before it must wait for acknowledgement. Means ये नहीं होगा कि whenever any station primary और station A continuously send their data without waiting for acknowledgement whatever packet sent by the primary station. तो सबसे पहले वेट करना जरूरी होता है, बट ये भी नहीं होता है कि एक पैकेट सेंड करें और उसके बाद फिर इनडेफिनिट वेट करें, ये भी नहीं होता है। एक्नॉलेजमेंट का वेट करना है, जो स्पेसिफिक टाइम है उस टाइम के अंदर ही वेट करना है, और उसके बाद जो भी मैसेज आए या ना आए, फर्दर एक्शन विल बी कैरीड आउट according to the situation whatever received by the primary station from the secondary station. तो indefinite wait भी नहीं होना चाहिए. So the flow of data must not be allowed to overwhelm the receiver. Any receiving device has a limited speed and the capacity at which it can process incoming data and limited amount of memory also in which to store incoming data. Mean ये सब limitations है by which flow control is necessary and is tackled by the data link layer. The receiving device must be able to inform the sending device before those limits are reached and to request that the transmitting device send fewer frames or stop temporarily. This is already communicated between sender and receiver, primary और secondary in the formal communication method, कि वो बता देता है अपनी कैपेसिटी, मेमोरी, ठीक है, स्पीड, ये सब पहले से ही वहां पे पता होता है.
जैसे हम लोग भी आपको जब पढ़ाते हैं, जब बात करते हैं तो हमेशा बीच बीच में रिस्पॉन्स लेते रहते हैं कि ऐसा ना हो कि वन साइड कम्युनिकेशन चलता ही रहे और आप कुछ ग्रैप्स ही ना कर पाए। इसीलिए बीच बीच में कन्वर्सेशन चलता रहता है कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन को पूछ लीजिए, वहां पे कोई दिक्कत हो वहां पे क्लियर कर लीजिए, देन ओनली नेक्स्ट टॉपिक और कॉन्सेप्ट विल बी डिस्कस्ड। तो सेम पैटर्न यहाँ पे भी होता है फ्लो कंट्रोल में भी। Actually, you can say that flow control refers a set of procedure used to restrict the amount of data the sender can send before waiting for acknowledgement. Definition मैं लिख भी दे रहा हूं। Flow control refers, नोट आप चाहें तो कर भी लीजिए, to a set of procedure used to restrict the amount of data the sender can, sender और प्राइमरी जो भी आप कहना चाहें, can send before waiting for acknowledgement. For acknowledgement. Okay. So there are two methods to control the flow of data. First one is methods of flow control. First one is stop and wait, and second one is sliding window. Second one is sliding window protocol. Stop and wait protocol and sliding window protocol. I am going to discuss stop and wait. बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्विज में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। सबको विजिबल है, दिख रहा है, डिस्प्ले हो रहा है प्रॉपर? सभी को दिख रहा है? As name suggests, stop and wait means this is the method of flow control. The sender waits for an acknowledgement after every frame it sends. Directly concept है stop and wait means after sending any frame, single frame, sender must wait till the acknowledgement of previous frame of phase come to their end. तब तक उसको वेट ही करना है, भेज नहीं सकता है दूसरा सेंड कोई भी पैकेट, ये ध्यान रखना है। Only when an acknowledgement has been received, then next frame is to be sent. This process of alternately sending and waiting repeats until the sender transmits an end of transmission. Stop and wait can be compared to picky executive giving dictation. Suppose जैसे कोई भी हम लोग डिक्टेशन इवन बोलते हैं, सपोज जैसे हमने आपको कोई एक वर्ड बोला, when you said okay, then only I am going to speak another word. जिस तरह डिक्टेशन में होता है कि जब हमने कोई वर्ड बोला या कोई भी डेफिनेशन का कुछ फ्रेज बोल दिए और उसके बाद आपने कहा ओके, तब हम उसको दूसरा सेंड करते हैं, तब तक हमको वेट करना होता है। सेम प्रोसीजर आपका कॉन्सेप्ट है वो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में भी फॉलो होता है। और जब भी कोई प्रोटोकॉल आप डिस्कस करेंगे, डायग्राम जरूर बनाएंगे। इसमें भी सेम डायग्राम है, थोड़ी सी मेथोलॉजी में चेंज हो गया है।
दिस इज सेंडर, दिस इज रिसीवर। सपोज करिए ए है एंड ये बी है। तो सेंडर सबसे पहले क्या करता है, आफ्टर द कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट, इसमें पहले डायरेक्टली डेटा भेज देता है। यहाँ इंक्वायरी का कोई मैसेज नहीं होता है, डेटा सेंड कर दिया। डेटा सेंड करने के बाद एक्नॉलेजमेंट इसका आ गया। ये जो टाइम होता है ये वेटिंग टाइम होता है। डिस्प्ले हो रहा है, ये दिख रहा है सभी को। देखिए ये सेंडर है, सेंडर ने डेटा सेंड किया रिसीवर बी पे और वेट किया जब तक कि एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल पा रहा है। आफ्टर रिसीविंग द डेटा फ्रॉम स्टेशन बी और रिसीवर बी, इट सेंड एक्नॉलेजमेंट अगेंस्ट द डेटा, जो कि पहला फ्रेम है, सेंड कर देता है। तो जब तक आपका रिसीव नहीं हो जाता एक्नॉलेजमेंट, तब तक जो टाइम होता है इसको हम लोग कहते हैं वेटिंग पीरियड। उसके बाद ही अगला डेटा फर्दर सेंड किया जाता है, दैट इज डेटा टू द रिसीवर एंड। और फिर एक्नॉलेजमेंट इसका जैसे ही गया तब तक आपको वेट करना पड़ता है, वेट टाइम। एंड दिस प्रोसेस इज गोइंग on until all data must be sent to the receiver and all acknowledgement against the data sent to the station B not received to station A। तब तक ये सारा प्रोसीजर चलता रहता है। और उसके बाद एंड ऑफ ट्रांजेक्शन का मैसेज फ्लोट कर दिया जाता है कनेक्शन। पूरा प्रोसेस ये है। मीन्स data sent after the connection establishment, sender send their data, receives acknowledgement against the data 1 जो भी पहला फ्रेम था, again send data 2 frame 2, receive the acknowledgement against the data 2, and if there is no enough data or no information to send receiver and B, it directly send an EOT, एंड ऑफ ट्रांजेक्शन मेथड, या एंड ऑफ ट्रांजेक्शन, एंड ऑफ ट्रांसमिशन मेथड को यूज करते हुए डायरेक्टली मैसेज टर्मिनेशन का एक सिग्नल सेंड कर देता है कि अब मेरे पास कोई मैसेज नहीं है और जो हम लोग का मैसेज कन्वर्सेशन चल रहा था वो भी खत्म हो गया। ओके, द एडवांटेज ऑफ स्टॉप एंड वेट इज मेनली इज सिंप्लिसिटी, बिकॉज इट इज वेरी इजी एंड सिंपल कि आपने एक पैकेट सेंड कर दिया और चुपचाप बैठे हुए हैं जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा। ईच फ्रेम इज चेक्ड एंड एक्नॉलेजमेंट बिफोर द नेक्स्ट फ्रेम इज सेंड, बट द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस प्रोटोकॉल और मेथड इज इनएफिशिएंसी। मींस जो आपको वेट करना पड़ता है इनडेफिनिट टाइम, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया चैनल जब आपको एलोकेट होता है तो वो डेफिनेट टाइम के लिए ही होता है, वो इनडेफिनिट टाइम के लिए नहीं होता है। तो मेन जो ड्रॉबैक है वो ये है कि आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जा रहा है। एक्नॉलेजमेंट बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, साथ ही साथ इट आल्सो डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ रिसीवर आल्सो। आपने आपकी स्पीड सही है, सेंडर ने सेंड कर दिया, बट रिसीवर की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और स्पीड बहुत स्लो है। इवन वो चेक करने में, रिसीव करने में, एक्नॉलेजमेंट प्रिपेयर करने में काफी टाइम कंज्यूम कर लेता है और कुछ समय तक आपको वेट करना पड़ता है। एंड आल्सो जो वेटिंग टाइम है इंक्लूड ट्रेवलिंग टाइम। एक्नॉलेजमेंट जो ट्रेवल करता है उस टाइम को भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, इंक्लूड कर लिया जाता है। तो वेटिंग टाइम आपका और ज्यादा लग जाता है। तो मेन डिसएडवांटेज इज द इनएफिशिएंसी ऑफ दिस प्रोटोकॉल, मींस ईच फ्रेम must travel all the way to the receiver and an acknowledgement must travel all the way back for the next frame can be sent. So this is the tedious job, very time taking job. Otherwise है बहुत safe और simple भी है, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। So come to the another protocol, that is your sliding window protocol.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल। फ्लो कंट्रोल का या डेटा कंट्रोल में डेटा लिंक लेयर का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क में से एक टास्क है ये आपका, या एक ये मेथड है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। वेरी इंपॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन आल्सो। कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मीनवाइल आप सबसे पहले अटेंडेंस मार्क कर दीजिए अपनी, सभी लोग अटेंडेंस लिख दीजिए चैट बॉक्स में। अभी 48 स्टूडेंट ने ही लिखी है अटेंडेंस। अभी 2 बार नहीं लिखो भाई। सो ठीक है। So come to the sliding window protocol. First of all, I am going to introduce about the sliding window protocol. As name suggests, it is the method of flow control. The sender can transmit the data. It directly checks the speed of sender whenever he is going to send their frame to the receiver end. The frame can be sent in the terms of or the bundle of 1, 2, 4, 5 accordingly the capacity or the limit of the window, and then wait for acknowledgement the sent frame. After the successful receiving of the acknowledgement against the sending frames, it send another bunch of frames and wait for the acknowledgement. This is the main concept of sliding window protocol. Means several frames can be sent or transmit at a time and wait for the acknowledgement of sent frames. Sliding window refers to imaginary box at both sender and receiver end. There is also facility or possibility that the sliding window, the mechanism of sliding window must contain or contain by both station simultaneously. तो सेंडर भी अपने साइड एक विंडो ओपन कर सकता है और रिसीवर भी इक्वली अपने साइड एक विंडो ओपन कर सकता है। सिर्फ सेंडर के साइड ही नहीं होता है, रिसीवर के साइड भी यही होता है। ठीक है, जब भी विंडो का प्रोटोकॉल यूज होगा, स्लाइडिंग विंडो का प्रोटोकॉल यूज होगा, तो सेंडर और रिसीवर म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग करने के साथ ही साथ विंडो अपने यहाँ एक ओपन करेंगे और उस विंडो के अकॉर्डिंग ही पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा। सो द स्लाइडिंग विंडो refers to imaginary boxes at both the sender and receiver. This window can hold frames at either end and provide the upper limit on the number of frames that can be transmitted before requiring an acknowledgement. सबसे पहले मैं आपको एक विंडो बना के दिखाता हूँ। ये फ्रेम्स होते हैं, इनको कैटेगराइज कर दिया जाता है। अभी बताते हैं कि कैसे फ्रेम का नंबर भी होता है। जो स्लाइडिंग विंडो होती है वो विंडो कुछ इस तरह से होती है। आप लोग ने सभी लोग ने वर्नियर कैलिपर्स ऑपरेटर्स देखा है, फिजिक्स में प्रैक्टिकल किया है सभी ने।
वर्नियर कैलिपर्स में भी एक मेन रीडिंग स्केल होती है और उसके रीडिंग स्केल के ऊपर एक मूविंग फ्रेम लगा होता है। और जब भी कोई भी आपका, चाहे वो आपका कह सकते हैं सिलेंडर हो या कोई भी स्केल हो या कुछ भी या पेंसिल हो, जैसे उसमें उसके जॉ में इसको फंसा देते हैं और उसके बाद उसको मूव कर देते हैं पिन से, तो जो रीडिंग होती है उस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर, वो रीडिंग हम लोग जो है लिख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना ऑब्जर्वेशन करते हैं। सेम इसमें भी होता है। ये सारे फ्रेम्स आपके होते हैं। ये सारे फ्रेम के बाद ये एक विंडो बनी होती है, यानी इस विंडो के अंदर जितने फ्रेम आ रहे हैं वही फ्रेम सेंड किए जाएंगे। ये ध्यान रखा जाता है। जो विंडो के प्रीवियस में आप देख रहे हैं फ्रेम नंबर 0, 1, 2, इसका मतलब दीज फ्रेम आर ऑलरेडी सेंट एंड द एक्नॉलेजमेंट ऑफ दीज फ्रेम यानी 0, 1 और 2 हैज ऑलरेडी रिसीव्ड। ओके। और ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं विंडो के अंदर, ये अब भेजे जाएंगे। दीज आर इन वेटिंग स्टेट और ये वाले अभी भी बाहर है। ठीक है, ये अभी भी बाहर है। विंडो आप सभी लोग देख पा रहे हैं, स्लाइडिंग विंडो। विंडो सभी को दिख रही है यहां पे। डिस्प्ले हो रही है, फिर से दिखा दे रहा हूं। देखिए ये सारे फ्रेम्स हैं। ये स्केल जो हमने बना रखी है, इसमें फ्रेम्स आपके सारे लगे हुए हैं। 0, अभी मैं बताता हूं इनके नंबर कैसे होते हैं। स्लाइडिंग जो विंडो होती है इसका साइज कितना होगा, ठीक है, और विंडो का साइज कितना होगा, सब बताते हैं। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए, ये आपका फ्रेम्स रखे गए हैं और ये विंडो है। इस विंडो के लेफ्ट साइड पे जो फ्रेम्स हैं, these are already sent and their acknowledgement is also received. These are in the waiting state. ये फ्रेम जो है आगे भेजे जाएंगे और ये अभी इस प्रोसेस से बाहर है। ये अभी इनडेफिनिट वेट पे पड़े हुए हैं, ये वेटिंग स्टेट में। ये मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो स्लाइडिंग विंडो का है। अब परफॉर्म कैसे होता है, एक्शन कैसे होता है, ये हम लोग अभी आगे डिस्कस करते हैं। ठीक, इसको ध्यान में रखते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले जो ये आपके फ्रेम है, इनका नंबर कैसे होगा। तो जो फ्रेम का नंबर होता है हमेशा ये मॉडुलस n होता है, यानी जो आपके फ्रेम का जो नंबर्स होगा वो हमेशा होगा 0, 1, 2, 3। अगर ये मॉड 4 की बात हो रही है तो 0, 1, 2, 3, फिर 0, 1, 2, 3। और कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स हो सकते हैं, वो होंगे 2 की पावर n-1। अगर मॉड 4 है यानी n आपका 4 है, तो जो टोटल फ्रेम होंगे दैट इज योर 2 की पावर 4-1 दैट इज 15। तो 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 8 हो गए। फिर से 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 4, 4, 8, 12, 3, 15। ये 15 फ्रेम होंगे, लेकिन उनका जो नंबर होगा वो होगा 0, 1, 2, 3 मॉड n में। एंड व्हाट विल बी द विंडो साइज, विंडो साइज होगा हमेशा n-1, यानी जो मॉड 4 है, अगर मॉड 4 तो विंडो साइज हमेशा 3 होगा। जो विंडो में एक टाइम पे 3 फ्रेम आ जाएंगे, ये ध्यान रखें। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि फ्रेम्स कैसे होंगे। हम मॉड n पे बात करेंगे। मॉड n का मतलब जो फ्रेम के नंबर होंगे वो 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 होंगे। हाउ मेनी फ्रेम्स कैन बी सेंट एट अ टाइम, वो डिसाइड होगा विंडो की साइज पे और डिपेंड करता है कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ
रिसीवर, लेकिन उनके नंबर जो होंगे वो 0123 0123 इस फॉर्म में होंगे। विंडो जो आपकी रहेगी उसमें एक्चुअल में एक टाइम पे 3 फ्रेम ही रहेंगे, n-1 यानी 3 फ्रेम ही रहेंगे, और टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स कैन बी पार्टिसिपेटेड ड्यूरिंग वन ट्रांजेक्शन, यानी वन ट्रांजेक्शन का मतलब जैसे हमने 15 बताए फ्रेम, तो 15 फ्रेम पूरे पूरे के जाने हैं जो एक सेशन अलॉट हुआ विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी स्टेशन। जो एक सेशन अलॉट हुआ या जो चैनल आपने कैप्चर किया, तो जो टाइम आपको अलॉट हुआ उस टाइम में 15 फ्रेम आपको भेजने हैं। विंडो के अंदर एक टाइम में 3 फ्रेम आएंगे। अब वो डिपेंड करता है कि रिसीवर की कैपेसिटी एक एक करके फ्रेम लेने की है या 2 फ्रेम एक साथ भेज सकते हैं वो, या कह सकते हैं कि नहीं आप 3-3 करके भेज दीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डिपेंड करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए ये कैसे हो रहा है, तब आगे डिस्कस करते हैं वर्किंग क्या होती है। ये सभी को क्लियर है? ये ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे बेस्ड हैं। अब आप जब क्विज देने जाएंगे तो सेकेंड यूनिट में क्वेश्चन जो होंगे वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। एक्नॉलेजमेंट, निगेटिव एक्नॉलेजमेंट, ये सब जितने भी हम लोग ने टर्म पढ़े हैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इसमें आएंगे। आशीष दुबे, क्लियर है बेटे? साइज ऑफ विंडो, how many frames can be participate in during one transaction, and what will be the actual window size. So now come to the another concept, means acknowledgement किस तरह से रिसीव होता है। सपोज करिए कि जो भी मैंने बताया वन टाइम पे आप 2 to 3 डिपेंड अपॉन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंडर एंड रिसीवर 2 फ्रेम आप सेंड कर रहे हैं। 2 फ्रेम सेंड कर रहे हैं, यानी जो फ्रेम आपने सेंड किए दीज आर 0 and 1, 0 and 1, देन यू विल रिसीव एज एक्नॉलेजमेंट 2। 2 का मतलब 2 फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट आपको मिला, एंड 2 आल्सो इंडिकेट दैट आपका जो अब अगला फ्रेम है वो 2 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा काउंटिंग बताएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब 3, जैसे ही अगले बार जब आपने सिर्फ इस बार एक ही फ्रेम भेजा, सपोज करिए आपको लग रहा है कि रिसीवर ने बताया कि इस टाइम उसकी स्पीड कम है, नेटवर्क स्लो चल रहा है, तो आपने एक ही फ्रेम भेजा, तो अगला जो आपका एक्नॉलेजमेंट आएगा दैट इज योर 3, यानी उसके पास अब तक 3 फ्रेम आपने जो भेजे हैं वो रिसीव हो चुके हैं, और वो 3 फ्रेम का तीसरे नंबर फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहा है। ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज और जो टर्म यूज कर रहे हैं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। एक्नॉलेजमेंट ये है तो इसका मतलब कितने फ्रेम आपने ऑलरेडी सेंड किए हैं, एक्नॉलेजमेंट ये है तो कितने फ्रेम नहीं सेंड हुए हैं, कितने उसमें विंडो में बचे हुए हैं। ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपका वहां पे फ्रेम होगा और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से। ओके, अगर सपोज करिए इफ द फ्रेम्स आर नंबर्ड फ्रॉम मॉडुलस 8, देन देयर इज द फ्रेम इज 0 1 2 3 4 5 एंड 6। जो उनका नंबर होगा वो होगा आपका 0 1 2 3 8 है, इसका मतलब 7 नंबर तक फ्रेम जाएंगे। ये ध्यान रखिए, मॉडुलस पे बेस्ड होता है। विंडो साइज आपका n-1 7 हो जाएगा, दिस इज विंडो साइज। और सपोज करिए विंडो साइज में इन्होंने 0 1 2 3 4 फ्रेम सेंड कर दिए, तो एक्नॉलेजमेंट आपको मिलेगा 4। ये एक्नॉलेजमेंट वाइस वर्सा क्वेश्चन, सपोज यू रिसीव्ड एन एक्नॉलेजमेंट
ऑफ 4, तो 4 का मतलब हो गया जो फ्रेम नंबर 0, 1, 2, 3 are successfully received by the station B or the receiver, and the 4 is the acknowledgement that all these 4 frames are successfully received. और अब जो टर्न होगा वो 5, 6, 7 का होगा. Also there are some protocols and working about the window size. Window size also shrink and grow according to the process. मीनवाइल पहले आपको ये अंडरस्टैंडिंग उसकी बेसिक्स पता होने चाहिए, तब हम प्रोसेस पे जा रहे हैं. ये इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. सूरज पांडे. हाँ, क्योंकि क्विज में देयर आर पॉसिबिलिटी टू मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ दिस स्लाइडिंग विंडो ओनली. ये ध्यान रखिए, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा. कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स होंगे, विंडो का साइज क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट क्या रिसीव हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ है, ये ध्यान रखिए. नंबर ऑफ फ्रेम्स आर 2 की पावर n-1. जो भी मॉडुलस आप निकाल लेंगे, n जो भी नंबर दिया होगा उसका मॉड निकाल दीजिए. तो अगर आप 4 की बात कर रहे हैं, मॉडल 4 की बात कर रहे हैं, तो 15 फ्रेम आपके वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं. n is equal to 4, then 15 frames can be participated. नंबर्स मैंने आपको बताया 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 15 फ्रेम्स आप हो गए. विंडो का साइज हमेशा n-1 होगा. दैट इज योर 3 फ्रेम्स ओनली कंटेन एट अ टाइम. एक टाइम पे 3 ही फ्रेम पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एंड आल्सो डिपेंड अपॉन द कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, स्पीड ऑफ रिसीवर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बाई बोथ सेंडर एंड रिसीवर. मीनवाइल वो एक टाइम पे ये भी हो सकता है कि एक फ्रेम सेंड करे, 2 फ्रेम सेंड करे, या तीनों फ्रेम भी सेंड कर सकता है. ओके, नेक्स्ट कम टू द प्रोसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस में डिस्कस करेंगे सेंडर विंडो. प्रोसेस इज आल्सो बाइफरकेटेड इन 2 पार्ट्स और कैरीड आउट इन 2 मोड्स, सेंडर विंडो एंड रिसीवर विंडो. ओके, सेंडर विंडो बना लेते हैं. यहाँ मॉड n की बात कर रहे हैं, n इक्वल टू 8, यहाँ की बात हमारी हो जा रही है. ठीक है, तो जो हमारा स्लाइडिंग यहाँ पे जो बन रहा है, यहाँ पे ये 3 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक, ये हमारा सेंटर विंडो बना है. विंडो का साइज हो जाएगा वो n-1, दैट इज जो 7 हो जाएगा. और फ्रेम्स हमने अभी यहाँ पे लगाए हैं क्योंकि बहुत सारे फ्रेम बन रहे हैं. 2 की पावर 8-1 करेंगे तो 2 की पावर 8 यानी 256, यानी 255 फ्रेम्स कैन बी पार्टिसिपेटेड इनटू अ सिंगल चैनल, जो भी उसने एलोकेट आपको हुआ है, एंड द स्पेसिफिक टाइम, जो भी स्पेसिफिक टाइम भी आपको मिला है. बट हमने जो विंडो बना के यहाँ पे रखी हुई है, एक टाइम पे 7 फ्रेम्स कैन बी सेंड. यहाँ पे आप फ्रेम देख पा रहे हैं 6, 7, 0, 1, 2. मतलब ये फ्रेम ऑलरेडी, ये जो स्केल है बहुत लंबी थी, इसके प्रीवियस सारे फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट यू ऑलरेडी रिसीव. और ये वाले जो विंडो के बाहर हैं, ये अभी प्रोसेस में होने बचे हुए हैं. सपोज करिए आपने 4 फ्रेम एक बार में सेट कर दिए, यानी फ्रेम नंबर 3, 4, 5 एंड 6 ये आपने सेंड कर दिए. तो जब ये सेंड किए और अब आपको वेट करना है एक्नॉलेजमेंट का, तो आपका जो
विंडो का जो साइज है वो श्रिंक हो जाएगा, यानी जो दूसरा डायग्राम बनेगा उसमें विंडो का साइज 1 2 3 4 वो यहां से हो जाएगा। तो मैं इसलिए ओवरलाइन बना दे रहा हूं। whenever you send any frame or the groups of frames to the receiver end, your window is shrink from rightwards, राइट डायरेक्शन। ये जो 4 फ्रेम आपने जैसे ही सेट किए तो विंडो हमेशा ओपन नहीं रहेगी। स्लाइडिंग का मतलब ही यही है, आपने उसको स्लाइड कर दिया और हमेशा विंडो का जो स्लाइडिंग होगा वो लेफ्ट टू राइट होगा, राइट साइड में हमेशा स्लाइड होगा, ये ध्यान रखना है। हमने यहाँ पे देखिए यहाँ इसलिए और बड़ी दूसरी विंडो ओवरलाइन बना से की है जिससे कि ये पता चल पाए कि ये 4 फ्रेम आपने सेंड कर दिए और नाउ यू आर वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ दीज 4 फ्रेम 3 4 5 6। विंडो में इस समय 701 3 फ्रेम बचे हैं। एज सुन एज यू रिसीव द एक्नॉलेजमेंट ऑफ दीज 4 फ्रेम्स, मतलब आप सपोज करिए एक्नॉलेजमेंट आपको 5 मिला, 5 का मतलब ये हो गया कि ये आपको ऑलरेडी 4 फ्रेम सेंड किए थे, अब आपको शुरुआत करनी है आगे से। एक्नॉलेजमेंट आपको 5 का मिलेगा, हमेशा एक बढ़ करके मिलता है एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। आगे आपको 3 फ्रेम सेंड करने, जैसे ही आपने 3 फ्रेम बोला कि हमें सेंड करने हैं या 4 फ्रेम सेंड करने हैं तो सबसे पहले आपकी विंडो की साइज है वो ग्रो कर जाएगी राइट साइड। ये वाली जो लेफ्ट वाली साइड है वो सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 ये 3 फ्रेम और 4 फ्रेम आपके और जुड़ जाएंगे इसमें, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ था क्योंकि आपने 4 पहले भेजे थे, एक्नॉलेजमेंट आपको 4 का मिल गया। विंडो में यहाँ पे 3 आपके फ्रेम बचे हुए थे, जैसे एक्नॉलेजमेंट मिल गया तो ये वाली जो आपकी वॉल है यानी राइट साइड की वॉल राइट साइड फिर से 4 फ्रेम में स्लाइड हो जाएगी, यानी जो एक्चुअल कैपेसिटी फिर से विंडो की 7 होगी। हमेशा राइट साइड ही मूव होगा, जब सेंड करेंगे तो लेफ्ट साइड का राइट साइड मूव होगा, जब दोबारा से रिसीव एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा तो राइट साइड का साइड भी राइट साइड में मूव होगा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है पूछ ले। हर विंडो के 2 साइड होंगे, लेफ्ट और राइट, मूविंग हमेशा राइट साइड होगी, लेकिन जब आप सेंड करेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट वाली जो वॉल है विंडो की वो मूव होगी राइट साइड। जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगा और फर्दर प्रोसेस से पहले विंडो राइट साइड की फिर से 4 फ्रेम राइटवर्ड्स मूव हो जाएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें, किसी को कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो बताइए। आयुषी जैन, समझ में आया? विंडो का मूवमेंट समझ में आ गया? क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। प्रखर वाजपेयी, विंडो का मूवमेंट समझ में आया आपको? हर विंडो के 2 साइड बना लीजिए, एक लेफ्ट और राइट, ऊपर नीचे वाला ना बनाइएगा, अप एंड डाउन। 4 फ्रेम को 4 साइड का विंडो बनता है। लेफ्ट साइड जैसे ही आपने फ्रेम सेंड किए लेफ्ट साइड श्रिंक हो जाएगा 4 फ्रेम के साथ, ठीक है। तो जो एक्चुअल साइज जो 7 फ्रेम का था वो अब श्रिंक हो गया 3 फ्रेम के लिए। और राइटवर्ड मूव होगा, हमेशा हमेशा मूवमेंट लेफ्ट टू राइट होगा। एक बार लेफ्ट वॉल मूव होगी, एक बार राइट वॉल मूव होगी। जैसे ही 4 फ्रेम जो आपने सेंड किए थे उनका एक्नॉलेजमेंट आपको रिसीव हो गया तो जो राइट वॉल है वो फिर से 4 फ्रेम राइट वर्ड्स मूव हो जाएगी। विंडो ऑलवेज श्रिंक एंड ग्रो होती रहेगी ड्यूरिंग द प्रोसेस। जो भी पूरा प्रोसेस है हमेशा श्रिंक एंड ग्रो करता रहे विंडो के साइज के साथ साथ, ये ध्यान रखना है हमेशा जब तक कि ऑल 255 फ्रेम हैज बीन सेंड टू द
रिसीवर एंड। ठीक है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, बाकी इसको नेक्स्ट लेक्चर पे हम कंप्लीट करेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट हो पूछ ले, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बार बार इस चीज को रिपीट भी कर रहे हैं कि दिस इज आल्सो आस्क इन योर टेस्ट। इसके क्वेश्चन इसमें बहुत बेस्ट क्वेश्चन इसमें आएंगे।